Hey guys, we are back with another video. This is the third part of the series that is meant to challenge the second chapter. In this video, we'll be solving 7 problems from the second chapter of CA Final Costing. So let's get started. As I say, keep practice manual in front of you. Problem number 13. If you just watch this video without having practice manual in front of you, I feel it's waste of time. I'll read the question. XY Limited makes two products X and Y whose respective fixed costs are F1 and F2. So as in how you read the question, you write in your answer sheet F1, F2, that is a fixed cost. You are given that the unit contribution of Y is 1/5 lesser than the unit contribution of X. अगर आपका X का contribution CX, that is a word that he has used. If the unit contribution of X is CX, this will be 1/5 less. What is 1/5? 1/5 बोला था 20% है ना. 1/5 less बोला था, you can say 80%. So 80% of X. I'll repeat this point because this point is important for the whole question. If your contribution of X is CX, then the contribution of Y is 80% of contribution of X. So that will be 80% of X. Okay. Then that the total of F1 and F2 is 1.5 lakh. So unit contribution is 1.5 lakh. Here it's given that the break-even point of X is 1800 units. 1800 units. And that 3000 units is a indifference point between X and Y. So indifferent points, in the last video we have discussed about what is that indifference point. Indifference point is 3000 units. Okay, so that's the question. I think, yeah, that's the question. Now we have to find out, considering the respective fixed cost, there is no inventory build up as with the whatever is produced and sold. तो जो भी आप प्रोड्यूस करें तो आप सेल कर दिया, तो there is no inventory required. Now pay 100% attention. Find out the value of F1 and F2. So F1 का वैल्यू अलग है, F2 का वैल्यू अलग है, and यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ X एंड Y. सो हमको F1 F2 ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, and we need to find out the contribution of X as well as Y. Okay, so I already done it as I told you, so we'll just be discussing about it. क्वेश्चन में क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट इज 1800 रुपीज फॉर एक्स. ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 1800. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? F1 है. सो F1 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, देखो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 1800 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कराना CX. सो CX यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, सो दैट इज योर F1. सो F1 इक्वल टू 1800 CX. ओके, सो आई ऑलरेडी डन इट. यहाँ पर देख लो F1 इक्वल टू 1800 CX. एंड देन वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन इज F1 प्लस F2 इक्वल टू 1.5 लाख. दोनों मिलाए तो 1.5 लाख आ रहा. ओके, सो F1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी आ गया ना, F1 इक्वल टू 1800x. सो सेम वैल्यू वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर. जिधर आपका F1 है, इन दैट प्लेस यू आर सब्स्टिट्यूटिंग 1800x. समझ में आ रहा होगा? दिस जस्ट मैथ्स. F2 को ऐसे ही रख दे रहा, 1.5 को ऐसे ही रख दे रहा. ओके, यू जस्ट डू हियर एंड देयर. यू विल बी गेटिंग F2 वैल्यू एज 1.5 लाख minus 1800 CX. and one more point, in cost indifference point is 3000. so cost indifference point का मतलब क्या है? At 3000 units there is a same thing. okay, so the profit of X and profit of Y will be giving the same profit. that is the meaning of the cost indifference. so 3000 units are produced करे तो into, I'll do this part. I think this is important. Here profit and here profit will be same at 3000 units. when you are producing 3000 units, आपका दोनों का प्रॉफिट एक ही रहने वाले हैं. यहाँ पर प्रॉफिट कितना होने वाला है? प्रॉफिट contribution minus fixed cost will give you profit. Is it not so? Sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you profit. So if that is the case, can't you write like this, contribution minus fixed cost equal to profit? So here also contribution minus fixed cost equal to
profit. So what is the contribution at 3000 units? Contribution per unit है ना, so 3000 into x, contribution क्या है cx minus fixed cost. Fixed cost क्या है f1. f1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी आ गया ना, f1 का वैल्यू 1800 cx, 1800 cx. I hope you are understanding and I hope you are doing along with me or just paying maximum attention. Equal to यहाँ पर contribution कितना रहने वाले है, contribution equal to 3000 because we are saying the in cost in different point is 3000 into, अब किससे मल्टीप्लाई करना, contribution per unit है. contribution अब क्या बोला था यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में 0.8, ओके, तो 0.8 cx माइनस ये क्या है f2 है. f2 का वैल्यू हमको किधर भी आया क्या, देखो यहाँ पर आ गया ना 1,50,000 माइनस 1800 cx. ऐसा यहाँ पर लिख दो सेम अमाउंट 1,50,000 माइनस 1800 cx. तो cx को आप सब्स्टिट्यूट करके जस्ट गेट डाउन टू वन वैल्यू दैट विल बी 50 एंड आई एम श्योर यू विल बी डूइंग दैट. तो आपके लिए ये cx आ गया. तो cx का क्या मतलब क्या है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ x. तो y का क्या हो सकता है 50 इंटू 40% है ना, सॉरी 80% है ना, तो 40 दैट विल बी द आंसर फॉर y एंड दिस इज आंसर फॉर x. सो फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. एट योर ब्रेक इवन पॉइंट योर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन की क्या है 50 रुपये है एंड यूर ब्रेकिंग इवन एट 1800 यूनिट्स. तो पूरा मल्टीप्लाई करें तो आपको 90,000 आने वाला है. आई होप यू कैन डू दैट. अगर आपको फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन अलग अलग करना बोले तो यू कैन डू इट लाइक दिस. ओके, इफ 90,000 इज फॉर एक्स तो बाकी का 60,000 ही रहने वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि f1 प्लस f2 इक्वल टू 1,50,000. जब ये 90,000 है तो ये 60,000 ही रहने वाले. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 13 एंड विल गो टू प्रॉब्लम नंबर 14. आई विल रीड इट. आई रिक्वेस्ट यू टू पे मैक्सिमम अटेंशन. Excel Polymers located in Sahibabad industrial area manufactures high quality industrial products. It Industries has asked Excel Polymers for a special job that must be completed within 1 week. आपका एक कंपनी है, कोई आके आपको पूछ रहा है कि लाइक आई नीड अ स्पेशल प्रोडक्ट वे है ना, यू शुड प्रोड्यूस इन 1 week. उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. Then raw material R1 is highly toxic will be needed to complete the 80 industry special job. वो स्पेशल जॉब करने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज R1 which is highly toxic. Excel Polymers purchased R1 2 weeks ago. So हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं. So that will become your book value. जो भी आप बुक में लिख देना that will become your book value. 7,500 for a job A that recently was completed. A product जो आप इसके लिए ज़रूरत पड़ रहा that you purchased long back and you already used it for the project which you have already completed. तो आप उससे काम ही नहीं है ना, तो 7,500 is just your book value. The R1 currently in stock is the excess from that job. Okay, जो आपको बच गया that is only you are having it with you. And Excel Polymers had been planning to dispose of it. Okay, they are thinking that they want to dispose it of. कहीं बेचने का सोच रहा. Excel Polymers estimate that it would cost them 1,250 rupees to dispose of. अगर वो dispose करने में भी उन लोगों का पैसे लग रहा. It's not that you are selling and you are getting the money. To make a sale only or to dispose it of only you are incurring some amount. Okay. Excel Polymers estimate that it would cost them 1,250 to dispose of R1. Current replacement cost is 6,000. Okay. So now we'll think from the examination point of view. और कुछ भी नहीं है, आपके पास एक आइटम है वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं एंड यू आर राइटिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट 7,500 रुपीज़. और डिस्पोज ऑफ करने में आपको 1,200 लगेगा, 1,250 लगेगा. अगर वो खरीदने के लिए 6,000 होगा. ओके, व्हेन यू ऑलरेडी डन विथ योर प्रोजेक्ट, क्या इसे फिर से खरीदने का क्या ज़रूरत है? नो, यू परचेज इट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, द पर्पज हैज बीन कंप्लीटेड. तो दोबारा परचेज करने का जरूरत नहीं है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भूल जाओ. देन दो बच गया, वन इज बुक वैल्यू, वन इज डिस्पोज्ड ऑफ. बुक वैल्यू क्या है? ऑलरेडी विच ऑफ परचेज्ड एंड यू हैव एंटर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच इज अ संक कॉस्ट. वी ऑलरेडी रेट दैट संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट, तो ये भी इररिलेवेंट बन गया. तो आपको जो जरूरत है दैट इज ओनली दिस 1,250. इट्स नॉट दैट यू विल गेट 1,250, इट इज दैट यू विल सेव 1,250 बाय डूइंग दिस जॉब. आपको समझ में आ रहा? अगर वो इंटॉक्सिकेटेड आइटम अगर डिस्पोज ऑफ करे तो आपको 1,250 लग रहा. अगर सेम आइटम इफ यू आर यूजिंग इन ए स्पेशल जॉब वो सेव हो सकता है ना. सो ही इज राइटिंग इन द नेगेटिव. आई होप आई एम क्लियर हियर. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
special job will require 250 hours of labor G1 and 100 hours of G2. देखो 150 hours and 100 hours यहाँ पर Excel Polymers pays their G1 and G2 employees 630 and 336 respectively for 42 hours of work per week. For 1 week they are paying 42. For 42 hours a week they are paying 630. So you will be finding out what is the rate per 1 hour. And Excel Polymers anticipates having excess capacity of 150 G1 and 200 G2 labor hours in the coming week. Excel Polymers can also hire additional G1 and G2 labor hour on a hourly basis. These part-time employees are paid an hourly wage based on the wage pay to current employees. बहुत कचरा बोल दिया. Like I'll give you in simple way. ये स्पेशल जॉब करने के लिए आपको G1 G2 दो तरफ का एम्प्लॉयज चाहिए. And you require 250 hours for G1 and 100 hours for G2. आपका लिए ऑलरेडी एक्सेस ज़्यादा 150 यहाँ पर है, 200 यहाँ पर है. बोले तो इन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यू ऑलरेडी हैव एम्प्लॉयज काइंड ऑफ G1 एंड G2. यहाँ पर एक्सेस है. ओके, यहाँ पर 200 एक्सेस है. देखो G2 आपके पास 200 लेबर आवर्स एक्सेस है. वो स्पेशल जॉब के लिए आपको खाली 100 ही जरूरत है. तो आप बाहर से फिर से लेने का क्या जरूरत है? आई एम गेटिंग यू रिक्वायर 10 pens to write the exam. You require only 3 pens. So do you need to purchase the pens once again? No, right? The same way you have excess of 200 hours, you require 100 hours now. So there is no need that you hire the excess labor one more time. So there is irrelevant हो गया. देखो, that's what I have written here also. G2 के लिए will not be incurring any cost. G1 के लिए देखो आपके पास 150 ऑलरेडी पड़ा हुआ है. लाइक लेबर आर सिटिंग आइडल देयर. यू रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ देम. तो 150 तो यूज कर सकते ना. तो यू एक्स्ट्रा भी कितना जरूरत है? जो बाकी है वो 100 आवर्स, वही आपके लिए अभी जरूरत पड़ेगा. सो यू विल बी राइटिंग ओनली 100. समझ में आ रहा? 630 रुपीज यू आर पेइंग फॉर 1 वीक डिवाइड बाई 42 करे तो आपको पर आवर के लिए आएगा. नाउ यू रिक्वायर 100 लेबर आवर्स, तो आपके लिए 1500 हो जाएगा. ओके, आई एम होप आई एम क्लियर. तो पूरा ऐड कर दो. दिस इज द मिनिमम कॉस्ट दैट यू विल बी आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. कम टू प्रॉब्लम नंबर 15. A company has to decide whether to accept a special order or not for a certain product M in respect of which the following information is given. Same kind of a question they are asking even now also, and same kind of a question institute is asking every time. आप कौन सा भी एग्जाम के ले हो, पेपर ले हो, पास्ट क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन तो एक तो भी रहेगा आपको. तो 4 नंबर आपके पॉकेट में रह सकता, आप अच्छे से समझे तो. फाइन. सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 15. मटेरियल ए रिक्वायर्ड 5000. देखो मैं यहाँ पर लिख दिया तो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. मटेरियल ए यू रिक्वायर 5000 kgs अवेलेबल इन स्टॉक. It was purchased 5 years ago at 35 rupees per kg. If not used for M, it can be sold as a scrap for 15 rupees per kg. आपके पास आपको एक 5000 kgs का जरूरत है that you already purchased long back by spending 35 rupees. So that is your book value. 35 rupees जो दिया, that is your book value. If you sell in the open market, you will get 15 rupees. That is your realizable value. Okay. अगर ये जो मेरे पास है, if I'm not using for this particular job, at least I'll be selling in the open market and getting that 15 rupees. तो उतना तो minimum मिलना चाहिए मेरे को. तो 15 rupees is your relevant cost. I hope I'm clear. तो 5000 into 15 तो आपको ये आ जाएगा. And come to the next point. Material B required 8000 kgs. तो 8 kgs यहाँ पर लिख दिया. Into this has to be purchased at 25 rupees per kg from the market. अभी आपके पास है ही नहीं, बाहर से मंगवाना पड़ेगा. तो into 25 करे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा. And then other hardware items 10,000 rupees to be incurred. तो to be incurred बोलो, that is also relevant. अभी खरीदना पड़ेगा. Then department X labor oriented 5 men for 1 month at 7,000 rupees per month per man. Labor to be freshly hired. तो अभी उन लोगों को भी रिक्रूट करना पड़ता. तो 5 into 7,000 35,000. आपको समझ में आ रहा? वट एवर इज रिलेवेंट दैट इज ओनली शुड बी द कॉस्ट ऑफ योर स्पेशल जॉब. वट एवर यू ऑलरेडी हैव, वट एवर दैट यू डोंट इंकर एंड विच इज इरेलेवेंट, आपको भूल जाना पड़ेगा. यस. डिपार्टमेंट वाई मशीन ओरिएंटेड 3000 मशीन आवर्स एट 5 पर मशीन आवर. एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी में बी यूज. आपके पास मशीन्स बहुत पड़ा हुआ है, आप उससे से उसको यूज करके आप ये स्पेशल जॉब कर सकते. तो दैट देयर इज नथिंग दैट यू विल बी इंकरिंग एफ्रेश ना. सो दैट इज योर इररिलेवेंट. समझ में आ रहा?
pattern and specification 15,000 to be incurred for M, but after the order it can be sold for 2,000. 15,000 रुपीज लगा के आपको खरीदना पड़ेगा, बट आफ्टर द जॉब यू विल बी सेलिंग इट फॉर 2,000 रुपीज. तो क्या आ रहा, इफेक्टिवली 13,000 नहीं आ रहा ना, so 13,000 ये पूरा को ऐड करते जो भी आपको हो रहा है, दैट शुड बी द मिनिमम प्राइस फॉर योर स्पेशल ऑर्डर. दैट इज द problem number 15. Come to problem number 16. Don't waste any time. S Limited is engaged in manufacturing activities. It has received a request from one of its important customer to supply a product which will require conversion of material M, which is a non-moving item. Special order आ गया तो उसके लिए same question, whatever is relevant वो भी वही लिखना पड़ेगा. देखो, come to the following details are available. Book value of the M is 60. Book value दे दिया. रियलाइजेबल वैल्यू, अगर आप बाहर बेचे तो आपको 80 रुपीज़ मिलेगा. रिप्लेसमेंट अगर खरीदना चाहते तो आपको 100 रुपीज़ होने वाले. सो विच वन यू विल टेक इट. एक जॉब करना है, उसके लिए आपको एम का ज़रूरत है. ओके, ऑलरेडी आप खरीद चुके हैं 100 रुपीज़ लगा के. ओके, अगर आप सेल करें तो 80 रुपीज़ आएगा, खरीदे तो 100 रुपीज़ में आएगा. वाई यू वॉन्ट टू परचेज वेन यू ऑलरेडी हैव इन स्टॉक. समझ में आ रहा. आई हैव ए प्रोडक्शन यूनिट, आई ऑलरेडी हैव ए मटीरियल. अगर आपको सेल करे तो आपको 80 रुपीज़ आएगा, अगर आप खरीदे तो 100 रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा. बट वाई डू आई परचेज इट व्हेन आई ऑलरेडी हैव इट. तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भूल जाओ. जस्ट नाउ आई सेड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल क्वेश्चन. तो बुक वैल्यू भी संक कास्ट, उसको भी भूल जाओ. तो क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसको ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. It is estimated that the conversion of 1 unit of M into 1 unit of the finished product will require 1 labor hour. वो कन्वर्शन करने के लिए आपको 1 घंटे का लेबर आवर का जरूरत है. एट प्रेजेंट लेबर आवर इज पेड एट द रेट ऑफ 20 पर आवर. सो 20 रुपीज़ पे कर रहा है ना, बट डोंट राइट डायरेक्टली बिकॉज देयर इज सम मोर इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट टू दिस. 2 लाइन को छोड़ के पीछे आ जाओ. द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज. इट इज एस्टिमेटेड दैट द temporary redeployment will not result in loss of contribution. The employees to be redeployed or permanent. देखो, ये जॉब करने के लिए you need certain laborers who are already working in some other department who are permanent. Okay, from that job they are coming to this job will not result in any labor loss or any contribution loss. वो आने के बाद में भी the remaining labor will work their work according to the plan. तो वो by getting those workers from that department to this department, you are not making any loss, so that will be your irrelevant. Okay, I hope that is understood. And देखो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 30. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर रिलेवेंट, तो उसको भी लेना पड़ेगा. एंड देन अलोकेटेड. जब भी आप अलोकेटेड देखते ना, अलोकेटेड का मतलब दैट इज द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दे ऑलरेडी incurred and now they are apportioning to various departments or various units or various machines. So जब भी आपको allocated दिखेगा, that is fixed, उसको भूल जाओ. Okay, so we will not be considering that allocated expenditure which is irrelevant. Okay, so add up all those things, you will be getting the answer, and that is your problem number 16. Come to problem number 17. A research project to date has a cost of 1,25,000. आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उसके वजह से आपको 1,25,000 रुपीज़ इंकर होना पड़ा. एंड इट इज़ अंडर रिव्यू. इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट शुड द प्रोजेक्ट बी अलाउड टू प्रोसीड, it will be completed in about 1 year and can be sold for 2 lakh rupees. अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करके सेल करें तो आपको 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा. The following additional information is available. Material have just been received for 30,000 rupees. These are extremely toxic and if not used in the project have to be disposed of by means of स्पेशल मीन सेट 7,500. आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है विच इज़ इंटॉक्सिक. 30,000 रुपीज़ यू हैव स्पेंड, दैट इज संक कॉस्ट, इररिलेवेंट. अगर आप उसको डिस्पोज करना चाहे तो आपको 7,500 पे करना पड़ेगा. सो 7,500 को यहाँ पर मटेरियल में लिख सकते. आपको समझ में आ रहा. एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ये ऑलरेडी इंकर्ड 1,25,000, वो भी संक कॉस्ट इररिलेवेंट, छोड़ दो उसको भी. अगर आप कंटिन्यू करके सेल करें तो 2 लाख रुपीज़ आ सकता था, तो फ्यूचर ओरिएंटेड है ना, सो दैट इज योर रिलेवेंट. सो 2 लाख को आप लेना पड़ेगा. एंड आपके पास एक मटेरियल है दैट इफ यू वांट टू सेल इट इन द ओपन मार्केट यू हैव टू डिस्पोज इट अप. इट्स नॉट दैट यू गेट द मनी, यू एंड अप पेइंग इट. सो 7,500 भी आपको इंकर होना पड़ेगा. एंड लेबर 37,500. द मेन आर हाईली स्किल्ड. दे
if they are released from the research project, they may be transferred to the works department of the company and consequently the sales would increase by 75,000. The accountant estimates that the prime cost of these sales would be 50,000 rupees and the overhead cost is 12,500. Same thing they are giving in different ways. आपका लेबर कॉस्ट 37,500 होता अगर आप इंकर हुए तो, बट इफ द सेम लेबर आर रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड दे आर डिप्लॉयड इन सम अदर प्रोजेक्ट, दे विल मेक द सेल्स बी इंक्रीज बाय 75,000. उसका वजह से आपको 75,000 रुपीज़ का सेल्स बढ़ सकता, बट उसमें 12,500 इज द इररिलेवेंट. जब भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिखता ना तो अज्यूम दैट इट इज इररिलेवेंट. सो आप क्या कर सकते, 75,000 माइनस 12,500 करें तो आपको 62,500 वो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा. I hope I'm clear here. We are going fast because we don't have time. तो पूरा ऐड कर दो तो आपको 1,45,000 आ जाएगा. See, somebody might get it out. क्या इसको नेगेटिव में कहीं को आया, ये why it's positive. See, 2 lakhs आपको मिलने वाला है. ओके 2 lakhs आपको मिलने वाला है. इफ यू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट आपको 2 लाख मिलेगा ना तो वो प्लेस आ गया. मटेरियल कॉस्ट इफ यू डोंट सेल इट इन द ओपन मार्केट एटलीस्ट यू विल सेव इट. इफ यू डिस्पोज इट ऑफ यू विल incur 7,500. if you continue you will save that 7,500. तो आपके लिए वो भी प्लस में आ जाएगा. दिस अपॉर्चुनिटी फॉर गन. ओके आपको कंटिन्यू करे तो आपका लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा ना, लाइक यू विल बी वेस्टिंग दिस 62,500 विच इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके एंड देन 18th प्रॉब्लम को आ जाओ. यस 18th प्रॉब्लम को आ जाओ. आई विल रीड द क्वेश्चन. Golden Bird Airlines Limited operates its services under the brand Gold Bird. The Golden Bird route network spans prominent business metropolis as well as a key leisure. देखो ऐसे क्वेश्चंस को फालतू का थियरी दे देता which we don't require in the examination. As a student or what I suggest is that directly मेन क्वेश्चन को पढ़ दो. ओके सो एग्जाम में आपको टाइम ही बहुत कम रहता, इतना पढ़े तो आपको 10 मिनट वेस्ट हो जाता. ओके यस 18th वाला देख रहे ना. इनकम स्टेटमेंट फॉर वन सच फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ले इज गिवन बिलो. कुछ स्टेटमेंट दे दिया, टिकट का रेवेन्यू दे दिया एंड वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, तो आपको कंट्रीब्यूशन भी आ गया. एंड देन ही हैज गिवन फ्लाइट एक्सपेंसेस बोल के बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे दिया ना. सो उसको बहुत ध्यान से मत पढ़ो, ऐसा ऊपर ऊपर देख लो. सैलरीज का क्रू, सैलरीज का फ्लाइट असिस्टेंट, बैगेज का, ओवरनाइट कॉस्ट का, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, फ्लाइट प्रमोशन एंड कुछ ऐसे दे दिया ना. सो व्हाई आई से दैट डोंट फोकस और डोंट स्टडी सो मच इज दैट आप जो भी पढ़ो anyway there will be some adjustment, right? There will be something which is related to that, no, those items in the additional information. तो कैसे भी वो बदलने वाले, जो भी आप पढ़ते हो उसका आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे भी बदलने वाले ना, तो डायरेक्टली रीड दिस. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट फ्लाइट, जो भी दे दिया. मेंबर्स ऑफ द क्रू, flight crew are paid fixed annual salaries. I hope you are having the question paper question in front of you. क्रू मेंबर्स को जो भी दे रहा सैलरीज फॉर द क्रू दैट इज फिक्स्ड. ओके वेयर एज फ्लाइट असिस्टेंट्स आर पेड बाय द फ्लाइट. ओके वो लोगों का अलग रख दो. द बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस इज इन एलोकेशन ऑफ द ग्राउंड्स क्रू सैलरीज एंड डेप्रिसिएशन. जब भी आपको आई सेड इट 10 times बाय नाउ, जब भी आपको एलोकेशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है विच मीन्स दैट इज ए फिक्स्ड, तो वो भी बाजू में रख दो. 1/3 of the liability insurance is a special charge assessed against the flight. जब को यहाँ पर आपको इंश्योरेंस दिख रहा ना 1,40,000 47,000, उसमें 1/3 इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लाइट. अगर आप ये फ्लाइट को नहीं चलाए तो वो तो बच सकता ना, उसको बाजू में रख दो. The hangar parking fees is a standard free charged for aircraft at all airports. Okay, जो भी वो दे रहा that is also fixed. And if the flight GB022 is dropped, Golden Bird Airlines has no authorization at present to replace it with another flight. Okay, उसका भी कुछ ज़रूरत नहीं. So what we have to find out is, अभी देखो, pay 100% attention now. Using the data available, prepare an analysis showing what impact dropping flight would have on the airline's profit. अगर उसको drop करे तो क्या इम्पैक्ट होता. सो ये करने के लिए अगेन सेम लॉजिक वी आर यूजिंग एवरी टाइम. यू हैव टू सी वॉट एवर इज रिलेवेंट एंड वॉट एवर इज इररिलेवेंट. जो भी आपका वेरिएबल पोर्शन रहता है दैट इज रेलेवेंट, क्योंकि यू विल इंकर ओनली इफ यू मेक ए फ्लाइट. समझ में आ रहा, अगर आप चलाए तो ही आपको इंकर करना पड़ता ना. सो दैट वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेवेंट. जो भी यू विल इंकर इवन इफ यू डोंट रन द फ्लाइट, तो दैट इज योर इररिलेवेंट. ओके सो ऑन दैट बेसिस आई हैव प्रिपेयर्ड दिस. Don't waste your time. Contribution lost if dropped 5,88,000 दिख रहा ना क्वेश्चन में, that is your
contribution lost, opportunity forgone, avoidable, जो भी आप avoid कर सकते that you write it. Salaries of the flight crew, उसको सेव कर सकते क्या? No, because somewhere is said that members of the flight crew are paid fixed annual salaries है ना, तो that you will not save, so 0. I hope you are understanding. I don't know. If you don't run the flight, you will be missing this 5,88,000. Okay, does it mean that total amount is lost? No. If you don't run the flight, you will be saving certain amount. समझ में आ रहा? What all you can save? Can you save the salaries of the crew members? No. Even if you don't run also, you will be incurring. You will be end up paying them salary. उसको pay करना पड़ेगा ना. So you are not saving. तो उसके लिए 0 आ गया. Salaries of the flight assistant. Assistants को तो will not be paying them if we don't run it. तो उसको save हो जा रहा ना. So that you are writing it here. तो प्लेस जो भी आपका बेनिफिट है वो प्लेस, जो भी आपका लॉस है वो नेगेटिव. इससे पहले क्वेश्चन में भी यही कर रहे थे हम. बैगेज लैंडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन अभी तक बोला था फिक्स्ड है. फिक्स्ड का मतलब यू विल बी कंटिन्यू टू इंकर, मीन्स यू विल नॉट बी सेविंग, तो ऐसे ही आने वाले. ओवरनाइट कॉस्ट वैसे ही जाने वाले. फ्यूल का वेरिएबल है. डेप्रिसिएशन ऑन ए, डेप्रिसिएशन नहीं है, ए इंश्योरेंस है. आई रोट इट रॉन्ग. इंश्योरेंस है 1,47,000 है ना. 1,47,000 डिवाइड बाई 3. वाई डिवाइड बाई 3? ओनली वन थर्ड ऑफ योर इंश्योरेंस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर दिस रूट. अगर ये रूट को छोड़ दिया तो वो तो इंकर होने का जरूरत नहीं है ना. दैट इज योर वेरिएबल, तो उसको भी प्लस में लगाओ. वॉट एवर इज योर बेनिफिट यू राइट इट ऑन द पॉजिटिव साइड. डेप्रिसिएशन, विल यू बी सेविंग डेप्रिसिएशन? नो, डेप्रिसिएशन तो कैसे भी इंकर होने वाला है ना, तो उसको छोड़ दो. फ्लाइट प्रमोशन 28,000 यू विल बी सेविंग इफ यू डोंट रन इट. हैंगर फीस उसको भी छोड़ दो. So that's how we got this answer. I hope it is clear. I know we are going fast. Only thing I want to tell you is whatever you can save, that is your benefit. Whatever you cannot save it, that is not your benefit. So write nil. Come to problem number 19. I'll read the question. A company had nearly completed a job relating to construction of a specialized equipment when it discovered that the customer had gone out of the business. आप एक project start करें, before it is completed, आपका जो customer है वो लोग बिजनेस को छोड़ के चले गए. समझ में आ रहा? आपके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यू स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट, यू स्टार्टेड ए प्रोडक्ट, वो बीच में रोकना पड़ रहा अभी. ओके, एट दिस स्टेज द पोजीशन ऑफ द जॉब वाज एज अंडर. ओके, अभी तो क्या हो रहा? ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेटेड, जब स्टार्ट करने से पहले कुछ एस्टिमेट कर रहा था, उसका कुछ जरूरत है क्या? नो. क्रॉस कर दो. इन योर एग्जामिनेशन पेपर ऑल्सो क्रॉस इट. कॉस्ट इंकर सो फर, जो भी आपको ऑलरेडी इंकर हो गया वो संक कॉस्ट हो गया, उसको भी क्रॉस कर दो. कॉस्ट टू बी इंकर, टू बी इंकर बोलते दैट इज अ फ्यूचर है ना, सो दैट इज रिलेवेंट, तो उसको ही हमको लेना पड़ रहा. 29,700 समझ में आ रहा होगा. देन प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल कस्टमर. वो ओरिजिनल कस्टमर जिसका वजह से हम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, वो हमको 1 लाख रुपीज दे दिया. सो दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी रिसीव्ड लॉन्ग बैक, तो वो इररिलेवेंट हो गया ना, संक कॉस्ट हो गया, उसको भी छोड़ दो. ओके, वाइल रीडिंग ओनली जस्ट मेक किसको ऐड करना किसको डिलीट करना बोल के. आफ्टर द सर्चेस ए न्यू कस्टमर फॉर द इक्विपमेंट हैड बीन फाउंड, is interested to take the equipment if certain modifications are carried out. We found the new customer is ready to take it अगर कुछ बदलाव लाए तो. What is that? The new customer wants the equipment in its original condition but without its control device. उसका कुछ control device का जरूरत नहीं कहते, that we can sell it outside and with certain other modifications. कुछ modifications करना पड़ रहा है, तो cost of these additional and modifications are estimated as under. Direct material cost 1050. देखो direct material cost 1050, उसके लिए कुछ adjustment देना, तो दोनों एक ही बार पढ़ो. I'll repeat. ये बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है दी ना, एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है ना, तो इसको एक बार पढ़ के इसको एक बार पढ़ के क्या करना बोल के सोचना की जरूरत नहीं. जब भी आपका डायरेक्ट मटेरियल पढ़ रहा ना, द सेम टाइम यू रीड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. देखो डायरेक्ट मटेरियल 1050 पढ़ो, द सेम टाइम रीड दिस ऑल्सो. द डायरेक्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मॉडिफिकेशंस आर इन स्टॉक. जो भी आपको इंकर होना चाहिए ऑलरेडी आपका स्टॉक में है. And if it is not used for the modifications of this order, they will be used in another job in place of the material that will now cost 2250. समझाता हो, आपको एडिशनली 1050 वर्थ ऑफ मटेरियल को यूज करना पड़ता, बट दैट मटेरियल इज ऑलरेडी इन योर स्टॉक, आपका शेल्फ में पड़ा हुआ है. इफ यू डोंट यूज इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यू विल बी यूजिंग फॉर सम अदर प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट के लिए दे हैव टू परचेज इट इन द ओपन मार्केट फॉर 2250. सो दैट इज योर रिलेवेंट कॉस्ट. समझ में आ रहा होगा. विल कंटिन्यू फर्दर. डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए में अलग दे दिया, डिपार्टमेंट बी में अलग दे दिया. डिपार्टमेंट में ए में देखो 15 मेन डेज. 15 मेन डेज बोले तो हमको 15 लेबर चाहिए. उसके रिलेवेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो.
Department A is working normal and hence any engagement of the labor will have to be paid at the rate of 120 per man day. So आपको 15 लेबर चाहिए into 120, so 1800 आ जा रहा. नॉर्मल है ना, तो now you will be incurring it from the outside. ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट में नॉर्मल कैपेसिटी चल रहा. अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बोले तो यू विल बी इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट. तो दिस इज रिलेवेंट बन गया. डिपार्टमेंट बी में देखो 25 मेन डेज. यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली देखो. डिपार्टमेंट बी इज एक्सट्रीमली बिजी, उसके पास टाइम नहीं है. इट्स डायरेक्टिव वेजेस इज 100 रुपीज पर मैन डे. ओके, एंड इट इज करेंटली यील्डिंग ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.20 पर rupee of direct wages. समझो, for department B we require 25 man days and we'll be paying 100 rupees. So that is your relevant cost. But on top of which क्या बोल रहे, they are busy no. अगर उसको काम करने दिया तो they will be yielding 3.2 rupees for every 1 rupee. तो आपके लिए 3.2 भी आपको ऐड करना पड़ता है into whatever you are writing here. समझ में आ रहा. डिपार्टमेंट B is fully busy. Okay, whatever you are paying to them is your relevant cost. On top of which, if you allow them to continue to work in your old production, they will be yielding 3.2 rupees for every 1 rupee. So 2500 जो already आ गया into 3.2 करे तो आपको 8000 rupees आ रहा. Okay, that is the opportunity forgone if you continue to make this project modified. Then variable overhead दे दिया ना, 25 rupees of the direct wages in each department. So that is a variable cost. 25% of what? देखो, you might be making a mistake here. If you add up all these things, you will be getting the wrong answer because इसमें आपको खाली ये दो अमाउंट इज डायरेक्ट टू लेबर. ये जो ये आया ना 8000 is a opportunity forgone. That is not your variable cost. Variable cost का मतलब when your labor is working, you will be incurring some other cost है ना. So opportunity cost है ना, इसको भूल जाना while preparing that 25% of the direct wages. तो ये दोनों को ऐड करो. We made the kachra of it. दोनों को ऐड करो into 25% will give you this 1075. And then delivery cost 1350 ले लो. That is relevant because there is no other information for that. And then come to the fourth point in your following additional information. Reason हम बाकी का पूरा already पढ़ चुके हैं. Don't waste time in your examination also. Supervisory overtime payable for the modification is 1050 लिख दो because that is relevant. The cost of the control device that the new customer does not require, उसको नहीं चाहिए ना, उसका cost 1350 है, 13500 है. That is already you incurred. If it is taken out, it can be used in another job in place of the different mechanism. The later mechanism has otherwise to be brought for 10,500. Same जो control device है, if that has to be purchased, we will be paying 10,500 rupees in the external market. The dismantling and removal of the control mechanism will take 1 man day in department E. मैं already कर चुका, so will not be wasting the time. यहाँ पर दिखाता हूँ. अगर बाहर से कर दे तो आपको 10,500 पड़ रहा ना. So that is your relevant cost. But to make it happen, आपको डिपार्टमेंट A में 1 घंटा का वर्क चाहिए. तो you will be paying 120 rupees for 1 day. 120 into 120 हो गया. And you will also be incurring variable overhead. Variable overhead कितना है? 25% ऑफ 120. तो ये 30 निकाल दो. So 10,350 is your relevant cost of this control device. 10,350. उसके बाद में क्या बोल रहा है? If the conversion is not carried out, some of the material in the original equipment can be used in another contract in place of the material that would have cost 12,000. अगर आप दूसरे पे लगे तो 12,000 मिल सकता. It would have taken 2 main days of the working in department A to make them suitable for this purpose. तो 2 दिन का ज़रूरत है. The remaining material will realize 11,400. So 11,400 as it is लिख दो. And the drawing which are included as a part of the job can be sold for 1,500. ऐसे भी लिख दो. So you might get out how come we got this 11,700. Same concept that just used. 12,000 पढ़ रहा ना. You require 2 main days in department A. So 2 into 120. Again you will also incur variable cost. उसको भी निकाल दो. So जो आपको आ रहा that is only your relevant cost. So you do it like this. You will be getting the answer. Calculations you are not doing. And we are done with the 6 or 7 problems, I guess. So 7 problems for this particular session. I hope you found this video helpful. Thank you for watching. Have a nice day.